First of all, I would like to welcome all media professionals from print, electronic, and social media. Bharati Vidya Bhavan, of course. Bharati Vidya Bhavan, a temple of learning, enlightenment, and focusing its vast experience and knowledge to conserve, to spread our rich culture heritage throughout the world. Since 1938, Bharati Vidya Bhavan is working day and night without any yes and no, without any break, any pause. So on the behalf of Bharati Vidya Bhavan, Delhi Kendra, I would like to welcome once again to all my media reporters, anchors, RJ, particularly from print media and social media, and freelance journalists are also there, and from print media also. Friends, as you know, Bharati Vidya Bhavan is promoting the India's culture and its rich heritage throughout the world. On this platform, Indian Classical Music Festival is organizing by Bharati Vidya Bhavan, a festival, one of its rare and one of its very unique kind. From 4th February to 10th February, we are organizing. And the key man behind this organization, in this festival, I would like to introduce the Wisdom, the group which is in front of you. You can see they are working day and night to spread this message to this world, that through the peace and love that we learn from our heritage, we can bring peace and love into this world. This particular festival, director of Bharati Vidya Bhavan Delhi Kendra, Sri Ashok Pradhan Sarji, and the center point, the center force behind this mission, the registrar sir, Rajesh Mishra, one of the prominent figure to spread this awareness that we must stand up to conserve and to spread our rich heritage. And let me introduce Deputy Registrar Sir, the man who is always standing with us, Bharadwaj, who is with us, and he always giving us that freedom that yes, we can do what we can think about India's rich culture. So now I would like to again introduce ma'am, and one of the key figure, if you know, but yes, I would like to highlight Dr. Shashi Bala, Shashi Bala, Dean of Center of Indology. There is a department of Indology, the Bharati Vidya Bhavan. If you know that we are not only educating, we are not informing about media and management, but Indology is a subject that we must try to try to know more about India's ethics, India's rich culture, Ved, Puran, and its heritage. So there is a special department. Ma'am is looking that department. Thank you, ma'am. Now I would like to request the director of Bharati Vidya Bhavan Delhi Kendra to give the details that how this program is going to be a milestone, not only for youngsters but for the stars, the local stars, the musical eminent personalities that they will perform in these 7 days. So now I would like to request sir, please. आप सबका स्वागत करता हूँ। भारतीय विद्या भवन में जो
एक ये प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए आप लोगों ने आने का कष्ट किया, और आपके आने से दिल्ली और हर जगह लोगों में इस विषय के बारे में सबको पता लगेगा, और उससे भारतीय विद्या भवन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है संस्कृत और संस्कृति को आगे बढ़ाने का, उस विषय में भी सबको पता लगेगा। परंतु सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 7 दिन का प्रोग्राम जो है 4 फरवरी से शुरू होगा और 10 फरवरी तक चलेगा। एक प्रोग्राम 3:30 बजे होगा, दूसरा प्रोग्राम 6 बजे होगा, और इसमें बहुत से आर्टिस्ट जो हैं वो भाग लेंगे, और वो भारत संगीत के विशिष्ट विषयों को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे, और यही इस बात का बड़ा भारी प्रभाव है। इसमें सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है कि ये प्रोग्राम इन्फोसिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया और भारतीय विद्या भवन दोनों की जा रही है। और ये भी आपको अच्छा लगेगा कि इन्फोसिस फाउंडेशन, आपको पता ही होगा कि इन्फोसिस नाम की एक IT कंपनी हुआ करती थी, उसी के जो संस्थापक थे उन्होंने ही इन्फोसिस फाउंडेशन बनाई है, और जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। और इस वर्ष उन्होंने भारतवर्ष में के विभिन्न भागों में संगीत संबंधी फेस्टिवल्स को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और उन सबको फाइनेंस किया है। और ये यहाँ भी जो प्रोग्राम हो रहा है वो भी इन्फोसिस फाउंडेशन फाइनेंस कर रही है, और इसलिए हम उसके प्रति भी अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं। क्षितिज माथुर जी वोकल प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद दास्तान गोई, ये आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग आएगी। उसी बार अगले दिन में 5 फरवरी को कव्वाली भी आएगी, फोक डांसेस भी होंगे, और कठपुतली पपेट भी होगा, गज़ल्स भी आएंगी, मेहताब अली नियाजी के द्वारा सितार किया जाएगा, कथक का डांस भी होगा, और कंटेम्प्रेरी डांस संगीत शर्मा द्वारा किया जाएगा, बॉम्बे सिम्फनी के द्वारा भी कुछ किया जाएगा, और इसी प्रकार से इंडियन सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स और वसंत ऋतु भी होगा, और क्लासिकल कर्नाटिक वोकल एंड भजन्स भी होंगे, और कालबेलिया म्यूज़िक एंड डांस भी होगा, और पंजाब म्यूज़िकल एंसेंबल भी होगा। उद्देश्य क्या है कि सारे भारत में विभिन्न प्रकार के जो आर्टिस्ट हैं और विभिन्न प्रकार के संगीत के अंग हैं, उन सबको प्रस्तुत किया जाए। वो फिजिकली इसी हॉल में प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु साथ साथ ये वेबसाइट पर भी, भवन की वेबसाइट पर भी आएगा, और इस प्रकार से लोग इसको वैसे भी देख सकेंगे। ये भी एक हमारा प्रयास है। 38 में कन्हैयालाल मुंशी जी ने महात्मा गांधी जी के आशीर्वाद से की थी, और उस समय तक भारत को स्वतंत्रता भी नहीं प्राप्त हुई थी। और उस समय उनका उद्देश्य था कि भारतीय संस्कृति को और उसके संबंधित जितने भी अंग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। और उस समय जबकि इंग्लिश रूल चल रहा था भारतवर्ष में, और कॉलोनियल रूल था, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, वेस्ट इंडियन कल्चर सिस्टम की बड़ी भारी उसको आगे बढ़ाया जा रहा था। लॉर्ड मैकाले जिन्होंने 1835 में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, इंग्लिश एजुकेशन लाए थे, उससे चल रहा था। उस सबको पर एक प्रकार के साथ साथ भारतीय संस्कृति जो कॉलोनियल रूल से अफेक्ट हो गई थी, उसको दूर करने के लिए भारतीय संस्कृति को के विभिन्न अंगों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना हुई, और इसका उद्देश्य था संस्कृत और संस्कृति। बहुत लोग ये भी जानना चाहेंगे संस्कृत और संस्कृति का क्या मतलब। संस्कृति तो कल्चर हो गया, संस्कृत का उद्देश्य क्या है? संस्कृत का उद्देश्य यह है कि भारतीय संस्कृति के जितने भी अंग हैं उन सबको का आरंभ ही संस्कृत भाषा में है। वेद है, उपनिषद है, और बहुत सी जो पुस्तकें जिनके बारे में कहा जाता है वो सब संस्कृत में है। इसीलिए संस्कृत भाषा को अगर आगे न बढ़ाया जाए तो भारतीय संस्कृति का जो बेसिक एस्पेक्ट है वो उस रूप में नहीं मिलता है। इसलिए संस्कृत और संस्कृति को आगे बढ़ाने का
भारतीय विद्या भवन का प्रयास रहा है। और भारतीय विद्या भवन का ये दिल्ली केंद्र इसको 1952 से आगे बढ़ा रहा है। और ये भी आपको जानकर अच्छा लगेगा कि भारतवर्ष में कम से कम 100 केंद्र हैं और 120-25 इंस्टीट्यूशन हैं, जिसमें 90 स्कूल्स हैं भारतवर्ष में, और भारत के बाहर 10 स्कूल्स हैं। और भारतीय विद्या भवन के केंद्र हैं, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और बहुत जगह पर हैं, जो कि भारतीय संस्कृति और संस्कृत दोनों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और उनमें सबसे अधिक जो चीज़ लोगों को पसंद आती है वो संगीत, क्योंकि संगीत जो है न केवल सुनने की बात है, वो उसके आत्मिक प्रभाव भी इस पर पड़ता है और उससे अंदर से शांति भी मिलती है। इसीलिए संगीत को आगे बढ़ाने का जो प्रयास है वो संस्कृति का एक बहुत ही अच्छा अंग है, और इसी को आगे बढ़ाने का हम लोग यहाँ पर बराबर प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2009 से हम लोगों ने भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र में एक संगीत समारोह का शुरुआत की थी। और उस संगीत समारोह में भारतवर्ष के बड़े से बड़े आर्टिस्टों को हम लोगों ने 14 साल में बुलाया। कमानी ऑडिटोरियम में किया गया फिजिकली। ऑफ कोर्स कोरोना के 2 वर्षों में हमने इसको ऑनलाइन किया था, और बहुत बड़े बड़े जितने भी आर्टिस्ट थे उनको 1-1 लाख रुपए के भाईबंद की ओर से अवार्ड भी दिया गया, जिससे कि संगीत को आगे जो बढ़ाने वाले कलाकार हैं वो भी आगे बढ़े और भारतवर्ष में भारतीय संगीत आगे बढ़ता रहे। एक तो संगीत संबंधी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको तो संगीत समारोह में किया ही जाता है, परंतु हम लोगों ने एक और काम किया, वो भी बड़ा मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति को उसके विभिन्न अंग संगीत को आगे बढ़ाने का काम ये किया गया है कि हम लोगों ने हर 14 बार भारतीय संगीत से संबंधित कुछ न कुछ पुस्तकें लाई हैं। पहले तो हम स्वर भारती निकालते हैं। इस स्वर भारती को भी सबको पसंद ऐसे ही फ्री दिया जाता है। इसमें किन किन आर्टिस्ट ने भाग लिया, कौन कौन के आर्टिस्ट बुलाए गए, कौन कौन के आर्टिस्ट को अवार्ड मिले, ये भी होता है। और उसके साथ साथ जिस विषय पर हम लोगों ने पुस्तक बनाई है वो भी इसमें आता है। और जो पुस्तकें हैं उनका सबसे बड़ा जो उद्देश्य था कि संस्कृत में जितने भी संगीत के ऊपर नाट्यशास्त्र के तरीके की बहुत सी पुस्तकें हैं, तमिलनाडु की पुस्तकें हैं, उन सब के ऊपर आज के युग के जो संगीत संबंधी स्कॉलर्स हैं उनका उसमें विचार उसको लाया जाए, जिससे कि आज के युग में जो लोग संस्कृत नहीं जानते फिर भी वो भारतीय संस्कृत में लिखे हुए जो संगीत के विभिन्न अंग हैं उससे उनको परिचित कराया जाए। संगीत और भारतीय संगीत, फिर उसके बाद नाट्यशास्त्र के ऊपर पुस्तक लगाई, फिर शिल्पतिकरण, बृहद्देशी, सारंग देवी संगीत रत्नाकर, कतुरा दामोदर विरक्त संगीत रत्नापना, पंडित आहा बोला संगीत परिजात, मानसोल्लास, पारस्य देवा संगीत समय सार, भव्य प्रकाश ऑफ सरादयनाया, और लास्ट पिक्चर जो हम बुक चलाए हैं अभी, आस्पेक्ट्स ऑफ अभिनय इन इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स शास्त्र एंड प्रयोग। तो ये भारतीय संस्कृति में संगीत संबंधी जितने भी बातें हैं उनको आगे बढ़ाने का बराबर प्रयास किया जा रहा है। और आपको ये जानकर अजीब सा लगेगा कि भारतीय नाट्यशास्त्र, जिसके विषय में मैंने अभी आपको कहा कि उसका जो लिखा था वो हमारे अभिनव गुप्ता जी ने लिखा था, जो कश्मीरी थे, बेसिकली शायद उत्तर प्रदेश से शिफ्ट हुए थे। उन्होंने क्या लिखा है मैं एक कोट करना चाहूँगा। कोट, देयर इज नो विजडम, नो नॉलेज, नो आर्ट, नो नॉलेज, नो आर्ट, नो क्राफ्ट, no device and no action that is found in Natya
दैट मीन्स नाट्य वर्ड का मतलब यहाँ सिर्फ नाटक या नृत्य का नहीं है। यहाँ नाट्य का अर्थ संगीत, हर प्रकार की संगीत, हर प्रकार का नाटक, हर प्रकार की दृष्टि, चाहे वो वोकल हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो, चाहे कुछ उसमें नाट्य शास्त्र का अर्थ ये है। तो इस प्रकार से ये मैं भारत मुनि का जो ये लिखा हुआ है इसको आपके सामने में कहना बहुत ही आवश्यक समझता था। विद्याभवन दिल्ली केंद्र की अपने आप में एक महत्व है, क्योंकि भारत के जो कैपिटल है दिल्ली, न्यू दिल्ली, उसी में ये सम्मिलित है। तो इसलिए इसमें जो कुछ होता है उसकी सब तरफ इसकी बात पहुंचती है और इस प्रकार से जो इस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास है वो भी सक्सेस प्राप्त करता है। अब मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि 2009 में भारतीय विद्या भवन ने एक सेंटर ऑफ इंडोलॉजी की स्थापना की। सेंटर ऑफ इंडोलॉजी की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि भारतीय संस्कृति के जितने भी अंग हैं उनको हम आगे ले जाएं और उसको आगे बढ़ा सकें। और उसमें उसी की ये डीन सेंटर ऑफ इंडोलॉजी के चेयरपर्सन जो है वो डॉक्टर शशि बाला बड़े भारी स्कॉलर हैं भारतीय संस्कृति के ऊपर, वो इस पर हैं। परंतु मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इससे संबंध जो हम लोग कोर्सेज यहाँ कर रहे हैं उसमें योगा, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एक्यूप्रेशर, होलिस्टिक हीलिंग, आयुर्वेदा, डाइट एंड न्यूट्रिशन और इस प्रकार से बहुत से भागों में यहाँ पर कोर्सेज चल रहे हैं। और आगे इंडियन फिलॉसफी पर, इंडियन हिस्ट्री पर, विभिन्न अंगों पर भी इस चीज़ को आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास है और इन चीज़ों को आगे हम बढ़ाएंगे। आपको ये भी जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि किसी समय में हम लोगों ने अभी तक क्या किया है इसमें संस्कृत संबंधित। हम लोगों ने इंटरनेशनल यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस की, जिसके बाद में उनके जो भी लेक्चरर्स आए उन पर संस्कृत इन सिल्क रूट पर पुस्तक निकाली, संस्कृत ऑन मैरीटाइम रूट पर पुस्तक निकाली, संस्कृत एंड यूरोप पर पुस्तक निकाली और सबसे बड़ी बात जो है अब जो कि भारतवर्ष में ये अभी तक हुआ ही नहीं, इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी निकल कर आ रही है। इसके 8 वॉल्यूम्स आ रहे हैं, जिससे 5 आ चुके हैं और इस प्रकार की पुस्तक का प्रकाशन इतनी बड़ी का आज तक नहीं है। 400 500 पेज की एक डिक्शनरी है, 5 प्रिंट हो गए हैं, 3 और अभी आ रही। तो इस प्रकार से और इस भारतीय विद्या भवन दिल्ली का जो भारतीय संस्कृति पर वो बढ़ाने का प्रयास है, इसको भारत सरकार ने भी स्वीकार किया हुआ है और इसको इसी पर अनुमोदन दिया हुआ है। और इसी अनुमोदन का अंग है कि भारत सरकार ने हमको इसी प्लॉट से लगा हुआ 2 एकड़ ज़मीन अभी और हमको दी है। इस 2 एकड़ में हम सेंटर ऑफ इंडोलॉजी का केंद्र बनाने का प्रयास होगा, जिसमें कि न केवल भारत के लिए परंतु सारे विश्व के लिए भारतीय संस्कृति संबंधित जितने भी विषय हैं उन सब के विषय को आगे ले आया जाए। उसमें लेक्चर्स हों, उसमें सेमिनार्स हों, उसमें कोर्सेज हों और वो केवल भारतीयों के लिए तो विशेषता है ही, परंतु उसके साथ साथ वो जो है वो अगर विदेशियों से जो लोग आएंगे उन सब के लिए भी किया जाएगा। और आप सबको ये जानकर भी प्रसन्नता होगी कि अभी हम लोगों ने पौरोहित्य यानी पुरोहित, हमारे मंदिरों में पुरोहितों की क्या कार्यशाली होती है, क्या कार्य करते हैं, कैसे किस चीज़ को आगे बढ़ाना है, बच्चे का जन्म हुआ तो क्या करना है, उसकी एजुकेशन शुरू हुई तो क्या करना है, विवाह हुआ तो क्या करना है, इस प्रकार से जो भी समाज में बहुत सी चीज़ें आती हैं इंक्लूडिंग मृत्यु, उसमें क्या क्या करना है वो सब आता है। और किस प्रकार से हवन करना है, किस प्रकार से कीर्तन करना है, किस प्रकार से पूजा करनी है, किस प्रकार से आरती करनी है, ये सब बातें जो है के लिए हम लोग एक कोर्स 2 देशों के लिए वेस्ट इंडीज़ में भी शुरू कर रहे हैं और उसमें अभी तक हमारे पास 48
व्यक्तियों का नाम आ चुके हैं जो कि इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, और इसका आयोजन और प्रयोजन विशेषतया हमारी डॉक्टर शशि बाला जी ही कर रही हैं, और हम लोग तो जुड़े हुए ही हैं, कर ही रहे हैं। परंतु इसको इस प्रकार की बातें मैं समझता था कि आप सबको हम की ओर से बताना बहुत आवश्यक है कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे लोगों के बीच में सिर्फ क्या होता है, वो वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश को जानना और इंडिविजुअलिस्टिक जो प्रशस्ति है, जो वैल्यूज़ हैं वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में और वेस्टर्न सोसाइटी में, वही आगे बढ़ती जा रही है। जहाँ जॉइंट फैमिली होती थी जिसमें बच्चों को दादा दादी से सबसे भारतीय संस्कृति में पता लगता था, वो समाप्त हो रहा जा रहा है, क्योंकि आज सिंगल यूनिट फैमिली बन गई है जिसमें पति पत्नी दोनों भी काम करते हैं, तो बच्चों को भारतीय संस्कृति से कोई संबंध ही नहीं हो पाता। तो ये सब इन चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि भारतीय विद्या भवन ने एजुकेशन सिस्टम में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के चलने के साथ साथ इंडिपेंडेंस के बाद भी 1938 से शुरू किया था कि केजी से लेकर ऊपर तक भारतीय संस्कृत के जो मूल्य हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारी आधारित वस्तुएं हैं और जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं अच्छी ओर, वसुधैव कुटुम्बकम जैसे कहा जाता है, इस प्रकार की चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय विद्या भवन 1938 से कोशिश कर रहा है। और आज भी कभी कभी स्कूलों में हमारे यहाँ एडमिशन होता है तो पेरेंट्स आते हैं तो साहब एडमिशन क्यों करते हैं? सर हम हमारे बच्चों को हम चाहते हैं कि वो भारतीय संस्कृति, भारतीय सामाजिक जो हमारी वैल्यूज़ हैं उन सब से वो जुड़े रहें, इसीलिए भारतीय विद्या भवन इस प्रकार का काम 1938 से करता आ रहा है। और आज एक ऐसी संस्था है जो कि इस प्रकार की कोई भी संस्था नहीं। और आपको ये भी जानकर पता लगे अच्छा लगेगा कि भारतवर्ष ने जब गांधी अवार्ड, महात्मा गांधी अवार्ड देना शुरू किया तो हिंदुस्तान के दो ही ऑर्गेनाइजेशन को मिला, एक तो रामकृष्ण मिशन को, दूसरा भारतीय विद्या भवन। तो इस प्रकार जो महात्मा गांधी की जो भारतीय संस्कृति से संबंधित विचारधारा थी, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिपेंडेंस को आगे बढ़ाया, इसलिए लिखा है आई एम हैप्पी टू लर्न दैट बीबी इज कंप्लीटिंग 84 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस सर्विस टू संस्कृत एंड संस्कृति। फिर उन्होंने अंत में 3 नवंबर 2022 के में लिखा है, बहुत ही सुंदर लिखा है, देयर इज कांग्रेचुलेशंस टू भारतीय विद्या भवन फॉर द ग्रेट वर्क डन in the last 84 years and best wishes for even greater achievements in future। इस प्रकार का हम लोगों को भावनाएं सरकार से मिली हैं मोदी जी द्वारा, और इसीलिए भारतीय विद्यालय जो है भारतीय संस्कृत के विभिन्न अंगों को ऊंचे बढ़ा रहा है। कोशिश के साथ हम कोशिश करते हैं इसी हॉल में ये सब होगा, उसके अलावा ऑनलाइन भी होगा और भी विशेष अंगों में भारत के लिए हो जाएगा, और इस प्रकार से इसको ये किया जाएगा। ये बातें जो हम कर रहे हैं वो आ रही हैं और इसको देख लीजिएगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, डिपार्टमेंट ऑफ एपिग्राफी, पैलियोग्राफी एंड मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्कियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन एंड फिलोसफी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, तंत्र एंड ज्योतिष। ये सीधा क्वेश्चन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये चाहते हैं कि संस्कृत, दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद, पुराणास, अर्थशास्त्र, वेदास, कंपैरेटिव फिलोसफी, रिलीजन एंड फिलोसफी, मॉडर्न लैंग्वेज ऑफ भारत, टू पब्लिश वर्क्स इन भारतीय विद्या, ये सब चीज़ों को हम आगे लेकर आए। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम करने का प्रयास भारतीय विद्या भवन कर रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की जैसे आप लोग आए हैं, मुझे यहाँ 14 वर्ष हो गए इस सेवा में ईश्वर ने मुझे मौका दिया है करने का।
तो परंतु पहली बार इस प्रकार का आज आयोजन हुआ है कि आप जैसे विशिष्ट लोगों ने आने का कष्ट किया है और भारतीय विद्या भवन के बारे में और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में जो भारतीय विद्या भवन 80-84 साल से प्रयास कर रहा है, उसके बारे में मुझे कहने का मौका मिला। मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूँ। आपने सुना पूरे प्रोग्राम के बारे में, भारतीय विद्या भवन का क्या मोटो है, क्या एम है और किस मिशन के साथ ये दिन दोगुनी चौगुनी रात भर हम लोग दिन भर इसी प्रयास में हैं कि किस तरह से भारत की ये जो कल्चर है, भारत की जो सभ्यता है, भारत की शिक्षा है, वो आर्ट, डांस एंड म्यूजिक के थ्रू पहुंचे। सर कह रहे थे कि 14 ईयर्स से वो भारतीय विद्या भवन के साथ हैं। कल हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, वो नहीं है, उसके साथ साथ कव्वाली भी है और जितनी भी भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंग हैं उन सबको भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है, मैंने अभी कहा ना कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ न केवल भारतीय जो हमारी संगीत की संगीत का जो एस्पेक्ट वो कम होता चला गया था, ये जो है कव्वाली ख़त्म हो गई और भी जो तरीके की चीज़ें हैं वो सब काठपुतली जैसे जैसे इस तरीके के काम पहले होते थे, वो सब चीज़ें जब टीवी पर आ जाए तो इन चीज़ों की वो देखभाल ही नहीं रही।